Hello, friends. Welcome to Daily Pointers, in which we will discuss important headlines of the day for 19th of June. So, the first topic is Government of India and UN Sustainable Development Cooperation Framework for 2023-27. ये टॉपिक आपका प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो में आया था एंड जनरल स्टडीज पेपर 3 इकोनॉमी एंड एनवायरमेंट के लिए रेलेवेंट है. नाउ दिस फ्रेमवर्क was signed by Niti Aayog of India and United Nations in India. According to the United Nations General Assembly Resolution 72/279 designates the UN Sustainable Development Cooperation Framework as the principal implementation and planning instrument for the UN development system at the country level. Now, this framework is built on 4 strategic pillars which are derived from the Sustainable Development Agenda of 2030. और इसके 4 strategic pillars हैं the 4 P's, that is people, prosperity, planet and participation. ये आपके 4 P's हैं. Now these 4 pillars have 6 outcomes area focusing on health and well-being, nutrition and food security, quality education, economic growth and decent work, environment, climate, wash and resilience and empowering people, communities and institutions. नेक्स्ट टॉपिक है आपका दुग्ध संकलन साथी मोबाइल ऐप. ये टॉपिक भी आपका प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो में आया था एंड जनरल स्टडीज पेपर 3 इकोनॉमी के लिए रेलेवेंट है. इंटरेस्टिंग चीज ये है कि दिस ऐप वाज लॉन्च्ड बाय द यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज, नॉट आपका डेयरी मिनिस्ट्री या फिर आपका एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने नहीं अनवील करा. So, Union Ministry of Heavy Industries unveiled this app. This app has been developed by Rajasthan Electronics and Instruments Limited, which is based in Jaipur and is a mini Ratna Central Public Sector Enterprise under the Ministry of Heavy Industries. इस मोबाइल ऐप का एम है टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ मिल्क बाय ऑनलाइन मॉनिटरिंग ऑफ डेयरी मिल्क poured at the milk cooperative societies. Next topic है हमारा National Working Plan Code 2023 for Scientific Management of Forest. ये टॉपिक आपका प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो में आया था एंड जनरल स्टडीज पेपर 3 एनवायरमेंट के लिए रेलेवेंट है. नाउ दिस कोड वाज रिलीज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट. पहली बार इस कोड को 2004 में अडॉप्ट करा गया था विच वाज सब्सिक्वेंटली अमेंडेड इन 2014. अब 2023 में रिवाइज कोड रिलीज करा गया है. दिस कोड वाज रिलीज्ड ऑन द ओकेजन ऑफ द वर्ल्ड डे to combat desertification and drought, which is annually observed on 17th of June. And India में ये दिन organize करा था Indian Council of Forestry Research and Education, which is based in Uttarakhand. For the first time, this National Working Plan Code has prescribed state forest departments to engage in continuous data collection and its updation in a centralized database. The Indian Forest Management Standard is also an integral part of this code. साथ ही में वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट के बारे में भी पढ़ लेते हैं. सो दिस इज एनुअली ऑब्जर्व्ड ऑन जून 17 and this marks the anniversary of the drafting of the UNCCD, that is United Nations Convention to Combat Desertification in 1994. This convention is the only convention originating from direct recommendation of the Agenda 21 of the Rio Conference of 1994, which was adopted in Paris in France in 1994 and entered into force in 1996. 2013 में Canada became the first country to withdraw from this convention, but दोबारा से वो 2016 में इसका मेंबर बन गया था. इसका जो परमानेंट सेक्रेटेरिएट है इस कन्वेंशन का, दैट इज लोकेटेड इन बॉन इन जर्मनी. एंड अगर इस डे के बारे में बात करें, सो थीम फॉर 2023 इज हर लैंड हर राइट्स. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रेंड्स इन साइक्लोन्स. ये टॉपिक आपका हिंदू न्यूज़पेपर के पेज 9 पे आया था एंड जनरल स्टडीज पेपर 1 ज्योग्राफी के लिए रेलेवेंट है. साइक्लोन्स के बारे में हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस करा है कि वो क्या होते हैं, कैसे ओरिजिनेट होते हैं, कैसे नेम करा जाता है. इस टॉपिक में ये बताया है कि ऑफ लेट इंडियन ओशन में, टू बी स्पेसिफिक नॉर्थ इंडियन ओशन में विच इंक्लूड्स अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल, वहां पे साइक्लोन्स का क्या ट्रेंड्स है इन द आफ्टरमैथ ऑफ द साइक्लोन बिपरजॉय. तो उसने ये की ट्रेंड्स आइडेंटिफाई करे. फर्स्टली, द नंबर ऑफ साइक्लोन्स in the North Indian Ocean has declined considerably over the past 4 decades. यानी कि पिछले 40 साल में नंबर ऑफ साइक्लोन्स डिक्लाइन हुए हैं. जो डिक्लाइन ऑब्जर्व करा गया है दैट वाज मेनली ऑब्जर्व्ड इन बे ऑफ बंगाल, बट इन कॉन्ट्रास्ट अरेबियन सी में साइक्लोन्स के जो नंबर्स हैं वो इंक्रीज हुए हैं. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा चाइनाज डेवलपमेंटल सिक्योरिटी अप्रोच. इसके ऊपर मेंस में क्वेश्चन आ सकता है. ये हिंदू न्यूज़पेपर के पेज 10 पे आया था एंड जनरल स्टडीज पेपर 2 इंटरनेशनल के लिए रेलेवेंट है. इस आर्टिकल में जो की डायमेंशंस हैं जो आप पढ़ सकते हैं वो है कि व्हाई आर द चाइनीज अथॉरिटीज क्रैकिंग डाउन ऑन यूएस बेस्ड कंपनीज. Is the US-China rivalry at the root of this aggression? How is China trying to balance development and security concerns? And India का क्या व्यू है? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टेलीग्राम बॉट्स. ये टॉपिक आपका हिंदू न्यूज़पेपर के पेज 11 पे आया था एंड जनरल स्टडीज पेपर 3 साइंस एंड टेक के लिए रेलेवेंट है. ये टॉपिक इसलिए न्यूज में है क्योंकि रिसेंटली टेलीग्राम बॉट एक्सेस्ड
and published identification numbers of the documents submitted for vaccination purposes, which includes Aadhaar and PAN card of individuals. Telegram है क्या? It is an open source application program interface messaging platform, and this service was launched in 2013. अब bots क्या है? So these are computer programs that acts as agents of a user or another computer program. और Telegram bots क्या है? So these are small applications that run entirely within the platform and can be designed to support any kind of task or service. इसके use है in smart communication and pulling information from defined database. But साथ में इसके security risk भी है. That is, bots can collect यूजर डेटा इंक्लूडिंग पर्सनल इन्फॉर्मेशन एंड चैट हिस्ट्री. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गांधी पीस प्राइज. ये टॉपिक आपका हिंदू न्यूज़पेपर के पेज 12 पे आया था एंड ये अवार्ड्स के लिए रेलेवेंट है. प्रीलिम्स में अवार्ड्स पे क्वेश्चन आ सकते हैं तो उसके लिए रेलेवेंट है. नाउ गांधी पीस प्राइज फॉर द ईयर 2021 हैज बीन कन्फर्ड ऑन गीता प्रेस which is based in Gorakhpur in Uttar Pradesh. Geeta Press 1923 में establish करी गई थी and it is one of the world's largest publisher. In fact, ये famous है for publishing श्रीमद् भगवद गीता. अब इस award के बारे में पढ़ें. So this is an annual award instituted by the Government of India in 1995 on the occasion of the 125th birth anniversary of महात्मा गांधी. ऑब्जेक्टिव यही है कि उन इंस्टीट्यूशंस एंड इंडिविजुअल्स को ऑनर करना जो महात्मा गांधी जी के आइडियल्स को प्रमोट करते हैं. इसके क्राइटेरिया देखें. सो अवार्ड इज ओपन टू ऑल पर्संस एंड इंस्टीट्यूशंस रिगार्डलेस ऑफ नेशनैलिटी, रेस, लैंग्वेज, कास्ट, क्रीड और जेंडर. जो कैश प्राइस है वो है इसका 1 करोड़ रुपीस. साथ में रेसिपिएंट को एक ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम का आइटम भी दिया जाता है जो महात्मा गांधी जी प्रमोट करते थे. इसके पास्ट रेसिपिएंट्स अगर हम देखें ऑर्गेनाइजेशंस में तो वो है इसरो, रामकृष्ण मिशन, ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश, विवेकानंद केंद्र, अक्षय पात्रा बेस्ड इन बैंगलोर एंड शोलब इंटरनेशनल बेस्ड इन न्यू दिल्ली. अगर पास्ट रेसिपिएंट्स हम इंडिविजुअल्स में देखें तो प्रोमिनेंट लोग हैं जैसे नेल्सन मंडेला, former president of South Africa, Archbishop Desmond Tutu of South Africa, Baba Amte, a social reformer, and Chandi Prasad Bhatt. और अगर हम पास्ट ईयर्स के कुछ रिसिपिएंट्स देखें तो 2019 में ये अवार्ड मिला था ओमान के जो सुल्तान हैं कबूस बिन सैद अल सैद एंड 2020 में बांग्लादेश के शेख मुजीबुर रहमान पोस्थोमस अवार्ड मिला था उनको एंड 2021 में गीता प्रेस को अवार्ड मिला है बेस्ड इन गोरखपुर. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वाई क्रोमोसोम के बारे में. ये टॉपिक आपका हिंदू न्यूज़पेपर के पेज 20 पे आया था. सो इस आर्टिकल में जो की पॉइंट्स वाई क्रोमोसोम के रिलेटेड हैं वो ये है कि इट इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज द मास्टर ऑफ मेलनेस. वो इस वजह से बिकॉज इन ह्यूमंस इन एडिशन टू द 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स इन ईच वी हैव अ पेयर ऑफ 6 क्रोमोसोम्स कॉल्ड एक्स एंड वाई. सारे बायोलॉजिकल मेल्स में एक्स एंड वाई क्रोमोसोम होता है एंड सारी बायोलॉजिकल फीमेल्स में 2x क्रोमोसोम्स होते हैं. सो एज यू कैन सी द वाई क्रोमोसोम डिटरमाइंस द बायोलॉजिकल मेल सेक्स. वाई क्रोमोसोम्स को कुछ रिसर्चर्स जोकिंगली जुवेनाइल डेलिक्वेंट भी कहते हैं बिकॉज ऑफ इट्स अबेंडेंस ऑफ रिपीटेटिव सीक्वेंसेस एंड पुअर फंक्शनल यूटिलिटी. ऑल्सो मेन लूज द वाई क्रोमोसोम विद एज एंड दैट इज एसोसिएटेड विद अ हायर फ्रीक्वेंसी ऑफ कैंसर्स, अल्जाइमर्स डिजीज एंड अ शॉर्टर लाइफ स्पैन. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मियावाकी फॉरेस्ट. ये टॉपिक आपका इंडियन एक्सप्रेस के पेज 17 पे आया था एंड जर्नल स्टडीज पेपर 3 एनवायरमेंट के लिए रेलेवेंट है. नाउ प्रधानमंत्री मोदी जी का जो मन की बात पॉडकास्ट है उसमें उन्होंने मियावाकी प्लांटेशन के बारे में बताया था. ये है क्या? इट इज अ जापानीज मेथड ऑफ क्रिएटिंग dense urban forest in a small area and it is named after the Japanese botanist Akira Miyawaki. This method involves planting 2 to 4 different types of indigenous tree within every square meter. In this method the tree becomes self-sustaining and they grow to their full length within 3 years. अब इसमें कौन से plants use करे जाते हैं? Mainly those plants are used which are self-sustaining and don't require regular maintenance in the form of manures and water. Common plants जो इंडिया में यूज करे जाते हैं under this plantation are अंजन, आंवला, बेल, अर्जुन एंड गुंज. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा DSR यानी कि डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस. ये टॉपिक आपका इंडियन एक्सप्रेस के पेज 17 पे आया था एंड जनरल स्टडीज पेपर 3 इकोनॉमी के लिए रेलेवेंट है. नाउ ऐसा लग रहा है कि इस साल मॉनसून आपका पुअर रहेगा जिसकी वजह से फार्मर्स माइट अडेप्ट डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस instead of transplanting and flooding of fields. ये है क्या? Direct seeding is a crop establishment system wherein rice seeds are sown directly into the field as opposed to the traditional method of growing seedlings in a nursery. In transplanting, the flooded fields basically deny oxygen to the weed seeds in the soil, preventing their germination. Water thus acts as a natural herbicide. But in DSR, water is replaced with chemical herbicides. DSR के benefits क्या हैं?
फास्टर प्लांटिंग एंड मैच्योरिंग, कंजर्वेशन ऑफ वाटर एंड रिडक्शन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। बट इसके कंस्ट्रेंट्स क्या है? दैट सीड्स आर एक्सपोज टू बर्ड्स एंड पेस्ट, वीड मैनेजमेंट का इशू है एंड रिस्क ऑफ पुअर और नॉन यूनिफॉर्म क्रॉप एस्टैब्लिशमेंट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा राइट टू नेम चेंज के बारे में। ये टॉपिक आपका इंडियन एक्सप्रेस के पेज 17 पे आया था एंड जर्नल स्टडीज पेपर 2 पॉलिटिकली रेलेवेंट है। नाउ रिसेंटली द हाई कोर्ट्स ऑफ इलाहाबाद and Delhi gave a verdict that right to change one's name or surname is part of the right to life under Article 21 of the Constitution. In fact, Allahabad High Court ने तो ये भी कहा है that it is a right under Article 19 Clause 1 Subclause A and also Article 14 of the Constitution. But साथ में Allahabad High Court ने ये भी कहा है that although the right to change or keep one's name is a fundamental right by virtue of Article 19 Clause 1 Subclause A and Article 21, but it is not an absolute right and is subject to reasonable restrictions. Next topic है हमारा प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम एंड लाइब्रेरी। ये टॉपिक आपका इंडियन एक्सप्रेस में आया था एंड जनरल स्टडीज पेपर 1 हिस्ट्री के लिए रेलेवेंट है। नाउ रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चेंज द नेम ऑफ नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी which is situated in the Teen Murti complex of New Delhi and has changed its name to Prime Minister's Museum and Library. अगर हम इस इंस्टीट्यूशन की हिस्ट्री के बारे में देखें, so this institution was built in 1929-30 as part of the Edwin Lutyens imperial capital and it was then known as Flagstaff House and it was the official residence of the Commander-in-Chief of the British Armed Forces in India. 1948 में it became the official residence of Jawaharlal Nehru, that is India's first Prime Minister, who lived there for 16 years until his death in 1964. पंडित नेहरू की 75th बर्थ एनिवर्सरी के ओकेजन पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एस राधाकृष्णन डेडिकेटेड द तीन मूर्ति हाउस टू द नेशन एंड इनॉग्रेटेड द नेहरू मेमोरियल म्यूजियम। 2 साल बाद नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी वाज सेट अप टू मैनेज द इंस्टीट्यूशन। फिर मोदी जी पावर में आए एंड इन 2016 ही फ्लोटेड द आइडिया ऑफ सेटिंग अ म्यूजियम डेडिकेटेड टू ऑल द प्राइम मिनिस्टर्स ऑन द प्रेमाइसेस एंड इन 2022 प्रधानमंत्री संग्रहालय वाज इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी। एंड लास्ट टॉपिक है हमारा व्हाई हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स आर लीविंग इंडिया। ये टॉपिक आपका मिंट न्यूज़पेपर में आया था पेज 1 पे एंड जनरल स्टडीज पेपर 3 इकोनॉमी के लिए रेलेवेंट है। नाउ अकॉर्डिंग टू डेटा कंपाइल्ड बाय Henley and Partners, in 2023, India will be the second biggest loser of millionaires after China's net outflow of more than 13,000 millionaires. In fact, 2013 and 2022 के बीच में India lost more than 48,000 high net worth individuals. इसके क्या रीजन है कि हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स इंडिया को छोड़ रहे हैं? इकोनॉमिक रीजन में देखें तो वो है आपका प्रोहिबिटिव टैक्स लेजिस्लेशन एंड कॉम्प्लेक्स रूल्स रिलेटिंग टू आउटबाउंड रेमिटेंसेस। साथ में इसके नॉन मॉनेटरी रीजंस भी हैं जैसे चिल्ड्रंस एजुकेशन, सोशल सिक्योरिटी एंड अ बेटर लाइफस्टाइल। एंड मोस्टली ये लोग कहाँ पे सेटल हो रहे हैं? जो मेजर डेस्टिनेशंस है वो है आपकी यूएसए, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया। सो फ्रेंड्स, ये आज की हमारी इंपॉर्टेंट हेडलाइंस ऑफ द डे थी। आई होप यू लाइक्ड इट। फॉर मोर अपडेट्स ऑन करंट अफेयर्स यू कैन फॉलो अस ऑन यूट्यूब, इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम। थैंक यू।